ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਸਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਊ to really be with love and adoration of Guru Nanak, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। over to you and welcome ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਇਨ ਲਵ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਧਾਗਾ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਜ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਅਗਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਅਨਰੈਸਟ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਮ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕ, ਦੋਨੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਧਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਸਨਾ, ਅੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਾਮੁਕਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਸੀੜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਛੋਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਪਸ਼ੂਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਪਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਵਨਸ ਅਪੋਨ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਹਾਵਤ ਕਿ a renowned physician once said, the best medicine for women is love. Someone asked कि if it does not work, तो फिर ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ increase the dose। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਬੇਟੇ, ਬੇਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਦਵੈਤ ਗਰਸ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਹ ਪਰਸੋਨਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਪਰਸੋਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਕਾਬ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਕਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੀਐਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਹਿਰਫੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 100 ਰੱਬ ਦੇ 100 ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ 99 ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। 99 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਲਿਕ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਪਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਬੋਲੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਭਾਉ ਮੀਨ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਅਪਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੇਅੰਤ। ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਰੂਪਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
वो सब विच है, वो सब थाई है। तो मनुख परमात्मा तो नहीं बन सकता, परमात्मा वर्गा बन सकता है। भाख्या भाव अपार, पार भाव मतलब होंदा है हद, अपार भाव जिसकी कोई हद नहीं। उहदी जिहड़ी बोली है, उहदा जिहड़े संकेत ने वो इतने प्यार वाले और बेअंत ने, उहदी कोई हद बंदी नहीं। तो असी साडा जिहड़ा प्यार है वो डुअलिटी वाला, मैं पहले कहा साडा प्यार है जिहड़ा असी अपने धर्म नाल प्यार करते हैं, दूसरे धर्म नाल नहीं। अपने देश नाल प्यार करते हैं, दूसरे देश लई वो सत्कार नहीं। अपने बच्चों नूं प्यार करते हैं, दूसरे दे बच्चों नूं नहीं। साडा प्रेम जोड़ा है वो स्वार्थ वाला है, बाइस्ड, मिलावट होंदी है साडे प्रेम विच, पॉल्यूटेड होंदा है। साडे परिवारक रिश्तियां वाले प्यार विच झूठ होंदे ने, गलत दा साथ दिंदे आ असीं। मैं एक सच्ची घटना दसा कि किसे अपने मेरे ही किसी रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी नाल झगड़ा हो गया। जाहिर सी कि मैं अपने उस रिश्तेदार दा साथ देना है, मैं उस नाल खड़ा हो गया, जबकि मैनू पता लगा कि गलती मेरे रिश्तेदार की सी। मेरे रिश्तेदार गलत होने ते पड़ोसी ठीक, वो गलत है मेरा रिश्तेदार, पड़ोसी ठीक है, साथ मैं अपने परिवार दा दिता। और ए इट हैपन्स, ये जिहड़ी मैं गल परिवार दी कीती है, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि मैं सही दा साथ नहीं दिता, मैं गलत दा साथ दिता। याद रखिए, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, क्योंकि यही सेंस वधी वधी हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाती है। ये परिवार की पकड़ फैल के राष्ट्रवाद बन जाता है, नैशनलिटी बन जाती है, कौमीवाद बन जाता है। इनू चंगी तरह समझना, इस सेंस की इस जिहड़ी सेंस की पकड़ फैल के कौमीवाद बन गई, जातिवाद बन जाती है। और इस परिवारवाद की सेंस ने सच ते झूठ के मापदंड दियां धज्जियां उड़ा के रख दित्तियां ने। ये दुनिया विच जिहड़ा कतलो गारत दा, अनरेस्ट दा कारण बन गया है, ये साडी पकड़ दा है कि जे किसी सिख ते किसी दूसरे मजहब के बंदे की लड़ाई हुई है, मैं एज ए सिख ये नहीं देखना कि गलती किदी दी है, मैं सिख का साथ दे देना। और इट्स हैपनिंग अराउंड अस, ये हो रहा है। तो ये मैं इस खास परपज लई ये मैं तुहानू इंस्टेंस दस्या कि ये जिहड़ा प्रेम है, ये जिहड़ी पकड़ है, ये पकड़ सच ते आधारित होनी चाहिए सी। पर इत्थे सच ते झूठ का कोई जो है वो नहीं रखा गया। सिर्फ ये रखा गया कि ये मेरे मजहब का है या ये मेरा रिश्तेदार है, मैं उसका साथ दे दिता, मैं ठीक का साथ नहीं दिता। देखो, जीवन जीन दे 3 ढंग ने। पहला ढंग है डर नाल जीना। इस ढंग दे विच दुख हुंदा है, पीड़ा हुंदी है। पर ध्यान रखना, मेरी गल नूं चंगी तरह समझदा, असी धर्म नूं भी डर कारण मनदे आ। दूसरा ढंग महत्वाकांक्षा विच जीना, कुछ पाण दी लालसा दे विच, कुछ पाण दी दौड़ दे विच, इस नूं वासना कहंदे ने। कुछ ना कुछ प्राप्त करन दे सुपनिਆਂ नाल जीना, इस नूं लोभी जीवन भी कहंदे ने। हो सकता है कुछ समय लिए खुशी मिले, पर इस पिछे जो है दुख ही दुख छिपिया हुंदा है। डर नाल जीना ते लोभ नाल जीना एक सिक्के दे 2 पहलू ने। डर मंदा है कि कुछ है जो गुम ना जावे, लोभ मंदा है कि कुछ मिल जावे। हुण इत्थे समझना है कि धर्म नूं भी असीं इन्हां दोवें तरीकिਆਂ नाल जी रहे हैं, मन रहे हैं, समझ रहे हैं। डर नरक जान दा, पिछले अगले कर्मां दे फल दा, और लोभ स्वर्ग जान दा। और गुरमत दे विच जिहड़ा सच जानो, मैं गुरु ग्रंथ साहब दा स्टूडेंट हाँ। गुरमत विच गुरु ने जिहड़ा तीसरा जीन दा ढंग है, प्रेजेंट विच जीना, वर्तमान दे विच जीना, उस दी गल कीती है। सारी गुरमत जिहड़ी है जीवत मरो दी गल करदी है। तो गुरमत वर्तमान विच जीवन जीन दी गल करदी है, और साडे वर्तमान विच अतीत शामिल होता है। तो गुरु साहब वर्तमान नूं तरजीह दिंदे ने। वो कहावत है ना, द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर लाइफ एग्जिस्ट आफ्टर डेथ, द रियल क्वेश्चन इज वेदर वी आर अलाइव बिफोर डेथ। ये सवाल नहीं है कि मरण तो बाद की है, सवाल यह है कि की डेथ तो पहले, मरण तो पहले असी जिंदगी सही मैने विच जी रहे हैं। सानू तो बाणी दे विच भगत नामदेव ने सीधा कह दिता है कि मुए हुए जो मुक्त दोगे, मुक्त ना जाने कोयला। मरण तो बाद मुक्ति की गल नहीं।
तो गुरु नानक साहब ने मनुख नूं यही समझाया कि हाउ टू एक्सप्रैस योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, वर्तमान विच किवें जीना है। तो वो कह रहे ने अटैच योरसेल्फ विद परमानेंट रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। ये अल्टीमेट रियलिटी की है? सतनाम। सतनाम दा की मतलब हुंदा है? एक क्लीयर अंडरस्टैंडिंग। केड़ा सत? ओ सत जो आद सच है, जुगाल सच है भी सच है, नानक होसे भी सच वाला है। इसनूं समझण नाल अपना आपा समझ आ जाएगा। इत्थे 4 बार सच आया, आद सच, जुगाल सच, है भी सच, होसे भी सच। और ध्यान रखना, इत्थे सच का अर्थ झूठ के विपरीत वाला नहीं सच। इत्थे सच ट्रुथ भी नहीं है। इत्थे सच का अर्थ है कि अल्टीमेट रियलिटी है, उदी होंद है। अध्यात्मक पद्धर ते सच का अर्थ सदीवी सच है, परम सच है, सच्ची होंद है। ते सच्ची होंद नूं समझण दे नाल, सच्ची होंद नूं दे नाल जीन नाल प्रेम पैदा हुंदा है। रब दयालु है, रब इंसाफ करदा है, रब प्रेम करदा है, रब कृपालु है। हुण बंदा रब तां नहीं बन सकदा, पर रब वर्गा बनन दी कोशिश कर सकदा है। और ये पढ़न नाल, भाषणां नाल अंदर दी रोशनी जिहड़ी है ये नहीं मिलेगी, ये समझण नाल मिलेगी। बड़ा खूबसूरत फरमान है, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सभाए भयो बैरागी। के सहजे नाल ही ऐसी प्रीत आ गई कि मैं सहज नाल ही बिराग विच आ गया। हुण किसे समझण वाली गल है। सार बड़े बड़े राइटर होए ने पूरन सिंह जी, वो कहते हैं कि किसी चीज नूं अन्ने वाह जफा मारन लेना ते आखना कि मैं इस नाल प्यार करदा, ये मेरी है, ये प्यार नहीं है, ये ममता है। जिसनों असी फड़ सकते हैं, जफा मार सकते हैं या टच कर सकते हैं, वो प्यार हो ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि प्रेम प्यार सदा रूहां विच वसदा है। प्यार जो नैना विच वस जावे ते नैन खुल जाते हैं। सारा जगत प्यारा लगता है ना बाणी दी लाइन, ये जगत हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। इस तरह प्रोफेसर पूरन सिंह ने एक होर बड़ी प्यारी गल कही। वो कहते हैं कि प्यार जिस्म दी मौत है। जिथे जिस्म दा कंसैप्ट नहीं है, उथे वो कह रहे ने रूहानियत दी गल। प्यार जिस्म दी मौत है। फिर नाल ही कह देंदे ने पर यह ख्याल भी पुराना है। वो कहते ने प्यार जिस्म दी मौत नहीं है, जिस्म विच वसदे हैवान दी मौत है, वासना दी मौत है। जिस्म विच हरी मंदर, जिस्म एक हरी मंदर बन जाता है जिस विच निरोल प्यार वसदा है। हरमंदर ये शरीर है। हुण शास्त्रां विच 3 तरह का जेड़े प्रेम दसे गए ने। एक वात्सल है, जेड़ा मां बच्चे का प्यार है, मां पिता जेड़ी खूनी रिश्ते ने। एक स्नेह है, बराबर नाल हुंदा है। एक भगती है, जेड़ी अपने तो वड्डे नाल प्रेम जेड़ा हुंदा है। और गुरमत विच प्रेम नूं अलग कीता, अलग दस्या गया। और वो है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच प्रीत प्यार 2 रूपां विच आया है। वो है, एक है मनमुख दा प्यार और एक है गुरमुख दा प्यार। उस परमात्मा दा निर्मल प्रेम ते प्यार गुरमुख वाला होता है। बिलावल महला 5वें दा अज दा साडा जिहड़ा विषय है कि ऐसी प्रीत करो मन मेरे, 8 पहर प्रभ जानो नेरे। इनू 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 गल नूं इस बाणी दे इस प्रमाण नूं समझना कि ऐसी प्रीत करो मन मेरे। मन नूं मुखातब हो रहे ने। 8 पहर प्रभ जानो नेरे कि 8 पैर नहीं, हर साह दे नाल परमात्मा नूं दा एहसास करना है। और इहदे विच ही समझाया गया। यह भी बड़ा खूबसूरत फरमान है। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। परमात्मा तो प्यार पान तो बिना तू किवें रह सकदा है। मन नूं यह भी कह रहा है। प्रेम दे विच जिहड़ा ना इह समर्पण है। प्रेम विच अपनी मर्जी दी थां प्रीतम दी इच्छा नूं मुख रखिया जांदा है। हुक्म करन दी थां हुक्म मन्नण दे विच विश्वास रखिया जांदा है। प्रेम हो है, प्यार है। देखो इस दुनिया विच 2 तरीके दे नाल असी जी सकते हैं, एक दिमाग नाल, एक दिल नाल। दिमाग नाल दुनियावी तौर ते सफल हो सकते हैं, लेकिन अंदरों पूरी तरह असफल होने की पूरी संभावना होती है। और आज दुनिया जिहड़ी इतनी फास्ट चल रही है, इतनी तरक्की हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सारी दी सारी दिमाग दे नाल चली जा रही है।
दिमाग बाहर की तरफ जाता है, दिल अंदर वाल आता है। तो सूफीज़म विच दिल नाल प्यार करन दी गल कीती जाती है। सूफीज़म विच प्रेम ते प्रीत दा मजहब जी प्रेम और प्रीत है। सूफीज़म दे विच सूफी दा अर्थ ही है जो हिरदे तो जीवे, प्रेम विच जीवे। सूफी अपने आप नूं प्रेमी ते परमात्मा नूं प्रेमिका मनदे ने। पर गुरमत विच गुरु ग्रंथ साहब मनुखता लई प्रेम की गल करते हैं। प्रेम वही कर सकता है जो परमात्मा नूं जानदा होवे, परमात्मा की वडियाई नूं समझदा होवे, परमात्मा की क्रिएशन नूं प्रेम करदा होवे। भावें परमात्मा की वडियाई नूं बयान नहीं किया जा सकता, पर प्रेम नूं, प्रीत नूं, प्यार नूं बयान किया जा सकता है। और गुरबाणी विच प्रेम नूं, प्रीत नूं एक सदगुण अते वैल्यूज के तौर पर विचारिया गया है। देखो, गुरु नानक साहब का धर्म एकांतवास नूं, इंडिविजुअलिटी नूं नकारदा है। गुरु नानक का धर्म संगति धर्म है। ये बड़ी इहदे पिछे मैं समझदा कि एक बड़ी वड्डी इहदे विच मैसेज सी, जिहड़ी संगत का कंसैप्ट है, संगत का जिहड़ा संकल्प है, ये एक दूजे नाल एक मिकता लई। वो है ना शब्द, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ये हुण इस संगत की गल कर रहे हैं। तो प्रेम के कई रूप ने, शरीरक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आत्मक भी हो सकता है। पर बाणी दे विच आत्मक प्रेम की गल है। और साडा अज दा विशा भी आत्मक प्रेम वाल प्रेरदा है सानूं। दो व्यक्तियों विच संबंध जिहड़े ने आजादी ते प्यार के आधार पर होण, नियम या हुकूमत के आधार पर नहीं। अज साडे जिहड़े रिश्ते ने, दुनियावी रिश्ते, वो हुकूमत दे नाल और नियमां दे नाल चलदे पे ने। आई मी माई माइन वाला कल्चर जिहड़ा है वो चल रहा है। असी ममता ते प्रेम नूं एक समझदे हां। ममता शब्द मम तो बनिया। ममता शब्द मम यानी मेरा, मेरेपन का एहसास, इस विच मलकीयत का एहसास होंदा है। ममता जिहड़ी है इहदे च आ जांदा है कि मैं अपना इतना हक बन लिया कि उसनूं आजादी के तौर पर कुछ करन ही नहीं दिता जाता। एक रूमी दी प्रसिद्ध बड़ी कविता है, रूमी बहुत बड़ा एक विद्वान हुए ने। वो लिखता है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के दरवाजे ते दस्तक देंदा है, अंदरों आवाज आती है और पूछा जाता है कौन। प्रेमी ने कहा मैं। अंदरों कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सोचता है, विचारदा है, अपने अंदरों महसूस हुई गलती देखता है कि मैं दस्तक दी है, जवाब दिता है मैं, और मैनू अगों मैनू रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलिया। और कुछ सोचने तो बाद फिर दस्तक देता है। फिर वही सवाल अंदरों आता है कौन। हुण प्रेमी का जवाब सी तू ही तू, ते दरवाजा खुल जाता है। ये ममता दा ते प्रेम दा जिहड़ा इहदे च डिफरेंस दस्सिया है। मेरेपन तो भावता है कि वस्तुआं नाल जिवें मेरापन हुंदा है, जिवें किसी वस्तु नूं, मैटर नूं मेरा कह दिता, असीं वाइफ नूं मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, ये जिवें किसी मैटर नूं मेरा बनाना है, उस तरह असीं जिंदियां जागदियां जानां नूं अपना मेरापन विच लिआने आ। व्यक्तियां नाल जिहड़ा है ये मेरापन नहीं हो सकता, आत्मावां नाल नहीं हो सकता। जो आत्मक प्रेम समझ गए वो समाजिक प्रेम दे विच भी रूहानियत आ जाए। मैं अगे इसनूं होर थोड़ा जिहा इसनूं समझण लई करांगा कि मैटर दे उत्ते अपना अधिकार जमाना, एक दूसरा जींदी जागदियां रूहां उत्ते अधिकार जमाना, साडा प्रेम इस तरह एकदम ऐसा हो गया। भारत देखो, इसनूं समझण लई कि भारतीय चिंतन विच दो तरह के दृष्टिकोणां ने दी मानता ने मनुख नूं विभाजित करके कर दिता सी। पहला चिंतन यह सी कि शरीर अते पदार्थ ही वास्तविकता है, अते चेतना या भरम, चेतना या आत्मा एक भरम है, इल्यूजन है। इसनूं समझना। दो दृष्टिकोण साडी भारतीय परंपरा विच सी। एक दृष्टिकोण सी कि मैटेरियलिज्म ही इज एवरीथिंग, यह जिहड़ी साडी बॉडी है इज एवरीथिंग, आत्मा उतमा कुछ नहीं है, आत्मा भरम है। और दूसरा दृष्टिकोण सी संसार ते पदार्थ भरम ने, इकल्ली आत्मा ही वास्तविकता है। इस तरह जीवन की निंदा की गई, शरीर की देह की निंदा की गई। इत्थों तक कहा गया कि यू आर नॉट योर बॉडी। जिहड़े ये समझते सी कि आत्मा ही सब कुछ है, ये जिहड़े योगी साधु अपनी शरीर के उत्ते सुआ मलदे सी,
ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਯੂਅਰ ਬਾਡੀ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਠੀਕ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਦਾਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦ, ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਲਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ। ਧਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਦਾਰਥ, ਮੈਟਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਪੂਰਕ ਹਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਲਿਵ ਧਾਤ ਦੋਏ ਰਾਹ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਸਭ ਵਨਨੈਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ? ਏਕ ਓਮਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਨਨੈਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਨਨੈਸ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਲਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸੀ ਸੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੜੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਓਬਸਟੈਕਲ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਲ ਜੀਵਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਗਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੈਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਓਂਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਸੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਤਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਇੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮ ਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਲੁਕਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਨਨੈਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਏਕਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਪਿਆਰ ਦੀ,
एकता दिलां दी। तो दुनिया ते धर्म दो जिहड़ी गल सी कि दुनिया दे धर्मां दे दो तरह के मार्ग चलते ने, चल रहे सी उन्हां च, जिहदी गल मैं पहले चर्चा की है। एक ध्यान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। बुद्ध, महावीर, पतंजलि, ये सारे ध्यान मार्ग ने। इन्हां विच प्रेम का कंसैप्ट मनफी है। ध्यान का अर्थ ही हुंदा इकल्ला रहना, एकांत रहना। ते प्रेम मार्ग किहड़े सीगे? ये सूफी सी, जिहड़ा कृष्ण दा, मीरा दा, चैतन्य दा रस्ता प्रेम दा सी। पर गुरु नानक दा धर्म ध्यान ते प्रेम दोनों च आधारित है। गुरु नानक साहब ध्यान दी, विचार दी भी गल करते हैं, ध्यान दी भी गल करते हैं। तो कहते हैं अट्ठे पैर जप्पा जाप की है, नाम सिमरन की जो गल आती है, ये ध्यान दी भी और प्रेम दी भी। गुरु नानक दा धर्म जिहड़ा है, ये ध्यान ते प्रेम दा कंबीनेशन है। हुण प्रेम शब्द जिहड़ा है, ये बहुत, प्रेम नूं बाणी विच अनुराग भी कहा गया, और ये शब्द बड़ा कीमती है। प्रेम शब्द इतना पवित्र है, पॉयस है, पर असी अज्ञानता करके प्रेम नूं, प्रीत नूं समझण विच असमर्थ हो गए। गुरु ग्रंथ साहब ने सानू जिहड़ी समझाया, मैं आम तौर ते जदों भी आनंद कारज हुंदा है, सिख विच विआह हुंदा, ते एक बड़ा खूबसूरत शब्द, धन पिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। बई जेड़े एक छत दे हेठां रहिंदे ने, वो हसबैंड वाइफ नहीं है जद तक एक जोत दोए मूर्ति धन पिर कहिए सोए। जे एक जोत दो मूर्ति एक जोत है, तां वो पति पत्नी ने। उस विच इस गुण नूं समझिए, प्रेत दी खूबसूरत मिसाल है। इस नूं पाण लई गुरु ग्रंथ साहिब विच चार लावां बारे विचार है। जिहड़ियां चार लावां ने, भावें गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ियां चार लावां ने, ये चार पड़ाव ने परमात्मा तक पहुंचण दे, पर मैं पहले भी कहा, जदों अध्यात्मकता नूं अपनी समाजिक जिंदगी दे विच असीं प्रैक्टिकल रूप लियावांगे, तो साडा वो समाजिक जीवन बड़ा आदर्शक हो जाएगा। और लावां जिहड़ियां चार ने, उन्हां दा लावां दा मतलब की है? लां दा की मतलब है? संस्कृत दा वर्ड लू तो आया है। इसदा मतलब हुंदा है एक तो टुट के दूसरे नाल जुड़ना। मतलब मैटरलिज्म तो स्पिरिचुअलिटी वल जाना, मैटरलिज्म तो टुटना, स्पिरिचुअलिटी नाल जुड़ना, मतलब यह है। दूसरा एक मतलब होर है इसदा, इहदे च संबंधां दा विस्तार, कि तुहाडा जिहड़ा दायरा है वो बहुत वड्डा हो जाएगा। जिस दिन तुसी तुहाडे अंदर प्रेम दा, प्यार दा, परमात्मा दा एहसास हो जाएगा, फिर तुहानू सारे इक्को जे लगणगे, फिर तुहानू सारा अपना परिवार लगणगे, फिर तुहानू अपना ही बेटा प्यारा नहीं लगेगा, दूसरे दा बेटा भी प्यारा लगेगा। सिर्फ तुसी अपने धर्म नाल नहीं प्यार करोगे, दूजे धर्म दा भी सत्कार करोगे। सिर्फ अपने देश नाल, अपने मजहब नाल नहीं, दूसरे मजहब नाल भी करोगे। अपनी कौम नाल नहीं, दूसरी कौमां नाल भी करांगे। तो लावां सूही राग विच ने। देखो कितनी गुरु साहब ने कितना सानू तोहफे दिते ने, पर असीं समझ नहीं रहे, वो अलग गल है। सूही जिहड़ा है ये लाल रंग होता है, और लाल रंग खुशी का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। सूही राग जिहड़ा है मिलाप का राग है। लावां भी उन्होंने मिलाप दियां कीतियां। मैं सारियां लावां दा तां नहीं, कोई आपां किसी दिन एक होर विशाल आनंद कारज दा चार लावां दा भी करांगे, पर इहदे विच मैं जिहड़ा ये चौथी लाव है सहज दी है। जदों धन पिरे आखिए कह बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोई मूर्ति, जिहड़ा सहज है चौथी ला है, वो एक जोत दोए मूर्ति। तो उस विच किसे शायर ने एक लिखा कि एक बुत तेरा है। ये मिसाल बड़ी वड्डी प्रेम दी दसी गई कि एक बुत तेरा है, एक बुत मेरा है, मैं दूसरी तू मैं, आ तोड़ के दोनों नू मिट्टी च मिला दईए, फिर उस मिट्टी विचों दो बुत नवें बना दईए, तेरे बुत च मैं होवां, मेरे विच तू होवें। ये सहज अवस्था है, ये प्रेम वाली अवस्था है, ये प्यार वाली अवस्था है, एक जोत दोए मूर्ति वाली अवस्था है। तो गुरु साहब ने मनुख नूं नफरत छड्ड के प्यार करन दा इलाही संदेश दिता। पर गुरु साहब जानते सन कि खाली भावना नाल हिरदे अंदर प्यार दा बीज नहीं पुगर सकता। भाव यह है कि हिरदे नूं
उस जहरीले मादे तो सुरखरू करना जरूरी है जो प्रेम प्यार दे बीज नूं पुंगरन नहीं तो रोकदा है। यह जहरीला मादा है मंद भावना, इगो, द्वैत, ईरखा, वैर, भय, सहम, कारता। ये सारे दे सारे जिहड़े ने ये प्रेम दे दुश्मन ने। तो हंकार, इगो ना तो धर्म तो डरदा है ते ना त्याग तो डरदा है, ना ज्ञान तो ना इलम तो। वो डरदा है ते सिर्फ प्रेम तो, कि जे प्रेम आ गया तो फिर इगो नहीं रहेगी, फिर नफरत नहीं रहेगी। तो असी तुसी उस जगत विच आ जिथे सब हन। जीवन नूं देखण दी जिहड़ी दृष्टि है जरूरत उसनूं बदलण दी है। दृष्टि बदलण नाल ये जगत बदल जाता है। साडी जिहड़ी दृष्टि साडा जगत है, साडा जीवन है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि नूं बदलना मतलब अपने आप नूं बदलना है। सवे विच ही नरक है, सवे विच ही स्वर्ग है, इत्थे ही कलयुग है, इत्थे ही सतयुग है। जे मेरे घर विच हर टाइम क्लेश है तो मैं नरक विच जी रहा, जे मेरे घर च प्रेम है, प्यार है, सहज है तो मैं स्वर्ग विच जी रहा। तो यही सवे विच ही संसार है, सवे विच ही मोक्ष है। और शास्त्रां च लिखिया सवे ही शास्त्र है। तो प्रेम करने वाला जिहड़ा लोभी नहीं हो सकता, क्रोध नहीं कर सकता, नफरत नहीं कर सकता। लोभी सब कुछ इकट्ठा करने की प्रवृत्ति वाला होता है, प्रेमी सब कुछ वंडन की प्रवृत्ति वाला होता है। वो है ना बाणी का बड़ा खूबसूरत, फरीदा जा लब तो ने क्या, लब तो कूड़ा ने। जिथे प्यार है, जिथे लोभ है, उत्थे प्यार हो ही नहीं सकता। और जिथे प्यार है उथे सब कुछ है। When there is greed, what love can there be? When there is greed, love is false. तो इसलिए ये लालच है तो असल प्रेम हो ही नहीं सकता। रामनुज एक बड़े बड़े विद्वान होए ने, वो कहते हैं कि अगर तुहाडे विच प्रेम नहीं तो तुहानू अरदास करन दा, मैं समझदा प्रेयर करन दा कोई हक ही नहीं। केवल ते केवल प्रेमी ही जान सकता है अरदास नू, पाठ नू, प्रार्थना की हुंदी है। प्रेम ही प्रार्थना है और तुहानू कुदरत तो सहज ही ये मिल सकता है। तो जीसस क्राइस्ट की भी एक गल मैनू याद ध्यान आ गई कि जीसस क्राइस्ट के वचन ने, वो कहता है कि जो प्रेम देवेगा उसनू होर मिलेगा, जो प्रेम वंडेगा वो होर पाने का हकदार बन जाता है, और जो प्रेम नहीं वंडदा अखीर वो आइसोलेट हो जाता है, वो सड़ जाता है। और क्या खूबसूरत मिसालां ने बाणी दियां। मैं हुण कुछ मिसालां देंगा जिहदे च मैं समझदा कि प्रेम दी, प्यार दी इंतहा दसी गई है। मैं फिर एक बार बेनती कर दियां कि असी बाणी पढ़दे हां लेकिन बाणी नू बिहाइंड दी लाइन समझण दी कोशिश करिए। हुण बाबा फरीद दा शब्द है, काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरहों जाली। हुण देखो इहदे च अदबी रस दी मिसाल है इस दो लाइनां विच बाणी दी, कि कोयल काली है, अग ने साड़ सुट्टी है, सड़ के काली है, स्वाह हो गई। तो कोयल दे काले होने का सबब पूछा गया कि तू काली किवें है, तेनू काली किवें बन गई तू। तो अगों की जवाब देंदी है कि ये देखो जिहड़ा काला होना है ना, ये अगन नाल काली नहीं हुई, प्रीत ते प्रेम दी अग नाल, बिरहों दी अग नाल। इत्थे कलतन भी गुण बन गया, कालापन भी गुण बन गया। ये कहंदा कि बिरहों दी अग लगी है। ते बिरहों की है, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान। तो बिरहा तां ही हुंदी है जे पहला प्यार होवे। एक कंडीशन है कि बिरहा बिना प्यार दे बिरहा हो ही नहीं सकती। देखो बिरहा, त्याग अते प्रेम एक दूसरे दे अपोजिट नहीं ने, इक्को ही ने। जिसने त्याग जान लिया, जिसने बिरहा जान लिया, वो प्रेम जान लिया। जिसने प्रेम जान लिया, त्याग जान लिया। तीजी लाम भी बिरहा ते मिलाप दी है, जिहड़ियां चार लावां ने। तो जिस प्रेम विच त्याग नहीं अते जिस त्याग विच प्रेम नहीं, दोनों झूठे ते खोखले ने। इस गल नूं भी आपां समझिए। एक बड़ी खूबसूरत और फरमान मेरे सामने है, मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई, बिलप करे चातरक की न्याई, त्रिखा ना उतरे शांत ना आवे, बिन दर्शन संत प्यारे। हुण इत्थे बिरहा जिहड़ा शिंगार रस दा एक स्थाई भाव मनिया गया है। 9 रस ने शायद भारतीय परंपरा दे विच जाप साहब पढ़ांगे
ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਵਿਯੋਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਰਹਾ ਆਤਮਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਹੋ ਤਿਸ ਪੇ ਆਪ ਵਿਚਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਗਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿੰਗਸ ਖੰਭ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੰਭ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਲਈ ਮੈਂ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਉਹ ਖੰਭ ਵਿਕਣ ਲੈ ਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਖੰਭ ਵਿਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਗਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਵੇਚ ਕੇ। ਤਨ ਜੜਨ ਦੀ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂ। ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। If I could find the wings on sale, I would buy them for an equal weight of my flesh. Then I would attach to my body and search for and find that beloved friend of mine. ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਉ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਜੋਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਨਾ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਵਾਲੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗਾਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਕਹਾਂ ਭਿਓ ਜੋ ਤਨ ਭਿਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋਂ ਡਰ ਪੇ ਤੇਰੇ ਜਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ तो हम भय हैं चकोरा, माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे तोड़ कमन से जोड़े। मैं तेरे नाल तोड़नी नहीं है, तेरे नाल तोड़ना तो मैं किदे नाल जोड़ा। फिर रहाओ विच अगे कह रहे हैं, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जे तू दीवे तो मैं दीवे दे विच जिहड़ी बत्ती है वो हाँ। जो तुम तीरथ तो हम जाती, जे तू रब्बा तीरथ है तो मैं यात्री हाँ। साची प्रीत हम तो स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। क्या बात है। मैं दुनियावी जिहड़ी प्रीत मैनू नहीं चाहिए, मैनू तेरी प्रीत चाहिए। और बाबा फरीद ने तो फिर जिहड़ी है हद्दां दी जिहड़ी सिरमोर गल कर दित्ती, और उन्होंने तुहानू एक फार्मूला दस दिता प्रेम दा, प्रेम पान दा। जे तो प्रिया की सिख हियाऊ न ठाहे कही दा। अगर तू प्यार चाहिए तैनू दूजियां दा तां किसे दा दिल ना तोड़। If you desire your beloved, then do not break anyone's heart. किसे नू तकलीफ ना दे, किसे नू दुख ना दे जे तैनू प्यार चाहिए। और इसे तरह बाबा फरीद का एक शब्द, बाबा फरीद ने जिहड़ी ये बिरहां दी गल और प्रेम प्यार दी गल इदियां बुलंदियां छुईयां ने, जो मन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए। ये आम तौर ते हर बंदा बुढ़ापे आन तो घबरांदा है, जोबन तो जवानी दे रहंदे खाविंद प्यार करदा है, पर ढल जान ते जिहड़ा प्यारी प्रेमी है वह परे हो जाता है। फरीद जी अपना डर दस रहे ने कि जोबन ढलन नाल मेरा साईं भी मेरे तो किते दूर ना हो जाए। दुनियावी तौर ते जदों बुढ़ापा आ जाता है तो जिहड़ा संगी साथी है जिहड़ा वो दूर हुंदा है, पर ओही गल वो कर रहे ने, डरदे पे ने कि जे मैं हुण बुढ़ा हो गया किते मेरा रब भी तो मेरे तो दूर नहीं हो जाए। फिर वही गल कह रहे हैं, जोबन ढलन नाल मेरा साईं भी मेरे तो परे ना हो जाए ते जीवन का स्वाद फिक्का ना पै जाए। पर फरीद दा जोबन ढलन वाला नहीं, क्योंकि प्रीत कायम है, क्योंकि प्यार अंदर है। जे आत्मक प्यार है तो फिर कोई तुहाडे तो दूर नहीं जा सकता, भावें कोई भी स्थिति शरीर दी हो जाए। तो फिर इस तरह
10वें पातशाह का एक शब्द मैं उसनों तुहाडे नाल शेयर करन तो बिना रह नहीं सकता कि मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना हुण इह प्रेम दी इंतहा है। तुद बिन रोग रजाइयों दा उडन नाग निवासां दे रहना, ए राइज इन लव है कि नाग सूल सुराई खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, कि माछीवाड़े दे जंगलां विच पैरां दे विच कंडे लगे हुए ने, सिर दे सिरहाना नहीं है, इट दे उत्ते सिर रख के और उस परमात्मा नूं मुखातब हो रहे ने। हाल मुरीदां दा प्रेम दी इंतहा, तुद बिन रोग रजाइयां दा उडन, तेरे बिना रजाइयां दा उड़ना रोग दे समान है। तेरा निवास स्थान विच रहना नागां विच रहना तेरे बिना। सूल सुराई वर्गी जिहड़ी सुराई सूल वर्गी लगदी है, प्याला खंजर वर्गा लगदा है, ते बिंग कसाइयां दा सहना जिहड़े मास जिहदे ते लटकांदे ने, तेरे तो बिना इंज है जिवें मैनू जो है किसे चिमटे नाल फड़िया होवे। तो दिलों मोहब्बत जिन से ही सच्चा, जिन मन होर मुख होर सिर काडे कच्चा। They alone are true whose love for God is deep and heartfelt। तो ये गुरबाणी दे विच सानू वार-वार गुरु ग्रंथ साहिब विच अनेकां इंस्टेंसेस ने प्रेम लई, उस प्रभु दे नू पान लई। और गुरबाणी विच प्रेम एक कहंदे ना आत्मा ते परमात्मा दे रिश्ते नू उन्होंने दस्या कि जिवें पति पत्नी दा प्यार है, सेवक ते स्वामी दा प्यार है, पुत्र ते माता दा प्यार है, पुत्र ते पिता दा प्यार है, भगत ते भगवान दा प्रेम है। ये सानू गुरु ग्रंथ साहिब विच मिल जाएगा। इसे तरह कमाल है, पूरी लिविंग बीइंग दी गल करदे उन्होंने, जिहड़ी जानवरां दी ते परिंदियां दियां गल्लां कीतियां, मछली ते पानी दे प्यार दी दे इंस्टेंसेस दिते ने, पपीए ते स्वाति बूंद दे, चकोर ते चंद दे, पतंगे ते दीवे दे, भंवरे ते फुल दे, हिरन ते नाद आदि दी प्रीत लई मिसालां जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सानू हर सैकड़ों इस तरह दियां मिसालां मिल जाणगीਆਂ, सिर्फ सानू ये समझाण लई कि जिहड़ा प्रेम और प्रीत दा जिहड़ा धागा है ये बड़ा नाजुक है, पर ये इतना पक्का है कि जिस विच प्रेम और प्रीत आ गई फिर उहदे लई जिहड़ा ये संसार है वो है ना, जिहड़ा ब्रह्म है, ये ब्रह्म दा मतलब है एक्सपेंडिंग वन। जिस प्रेम प्यार आ गया फिर एक्सपेंडिंग वन, फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं। वो पूरे आकाश दे विच जिवें आकाश फैलिया इस तरह उसकी जिहड़ी सोच हो जाएगी। तो कहना यह चाहना कि अपनी जिंदगी दे विच रब अगे परमात्मा अगे अरदासां असीं रोज करदे हां, सैकड़ों वार करदे हां। कमजोरां गरीबां ते लोड़वंदां लई प्यार दे दो बोल वधेरे मायने रखदे ने, बजाए कि असीं जिहड़ियां परमात्मा अगे अपनियां जरूरतां दी अरदासां करदे हां। असीं लोड़वंदां नूं ओह खुशियां, ओह धन मोड़ीए जो उन्हां कोलों खोया गया है, उन्हां नूं हसना सिखाईए, जीवन जीण दा उन्हां नूं हक देईए। क्योंकि कुछ गल्लां ध्यान रखिए, असीं दान भी करदे हां, असीं बड़ा कुछ लोग चैरिटी करदे ने, पर ध्यान रख लेना कि बिना प्रेम दे भुखे नूं अन्न दिता पर प्रेम नहीं दिता, खुशी नाल नहीं कीता, तो ओहदा कोई मतलब नहीं, किसे काम नहीं। अन्ना नूं अन्ने नूं अखां दे दिओ पर दिल खुश नहीं कीता ओहदा, तो वह भी किसे काम नहीं। जे रोगी नूं राजी कर दिता, मुर्दे नूं जिवा दिता पर उसदी रूह नूं राजी नहीं कीता, तो किस काम। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कालक दागा दाग, कि ऑल आर जस्ट ब्लैक स्टेन्स जे बिच प्रेम नहीं है। तो प्रेम क्यों जा होना चाहिए, क्यों जी प्रेम होवे, वो है मुंह लालन से प्रीत बनी, तोरी ना टूटे छोरी ना छूटी, ऐसी मादो कीर्तनी। भाई तेरे नाल तोड़न नाल टुटे ना, छोड़न नाल छुट्टे ना, मैनू ऐसा प्रेम दे कि मैं चाहवां भी तोड़ना तो मैं तोड़ ना सका, मैं छोड़ना चाहवां मैं छोड़ ना सका। किसी शायर ने कहा सी ना, प्रेम प्यार एक सागर है। वो कहता मैनू त्रे लगी, मैनू प्यास लगी, मैं सागर पी गया, प्यास अजे बाकी है। मैं सारा सागर पी गया प्रेम दा, लेकिन अजे भी मैनू प्यास है। तो प्यार दी एक बूंद सागर बन जाती है, तो फिर सागर भी छोटा लगता है। तो ये प्रेम जिहड़ा मैं पहले कहा, ये प्रेम प्यार जिहड़ा है ये परमात्मा है। तो इस वल नूं असीं समझिए, क्योंकि किसी कवि ने कहा सी कि
कि साडी कोई नस्ल कहेगी सानू कोस के कि असी रखी नहीं संभाल के प्रेम ते प्रीत दी सभ्यता। ये प्रेम ते प्रीत दी जिहड़ी सभ्यता है ये मनफी हो रही है, ये साडे आस पास दिख नहीं रहे। परिवारां दे विच सैकड़ों लोग मिलते हैं, वो अपनियां घर दीयां प्रॉब्लम्स जदों दसदे ने तां इंज लगदा जिवें घरां विचों प्रेम प्यार दी जिहड़ियां प्रीत दीयां गल्लां ने वो सब देखण नूं नहीं मिलदियां। तो मैं एक बड़ी भाई मरदाना ते एक किताब है मैं पढ़ रहा सी, उहदे चों मैनूं 2-3 चीज़ां बड़ियां चंगियां लगियां। उहदे 2 सवाल ने ते नाल ही उहनां दे जवाब ने। पहला सवाल सी कि भाई लालो दा निवास कित्थे है, ते जवाब सी जिथे भी सादगी दिसे, जिथे भी सादापन दिखे वही लालो दा घर है। दूजा सवाल सी रब जी दा निवास कित्थे है, परमात्मा दा निवास कित्थे है, ते उहदा जवाब सी जिथे भी आपसी प्रेम प्रीत प्यार होवे प्रेम दिखे वो परमात्मा दा निवास है। ते मैं समझदा कि इसे गल नूं असीं समझिए। किसे फकीर ने मौत नूं मुखातब हुंदे कहा, डेथ नूं, कि तू उदों आई जदों मैं खुदा दी याद विच होवां, मैं प्रेम विच होवां, तैनूं आण विच मजा आवे मैनूं जान विच मजा आवे। यह है प्रेम ते प्रीत दी जिहड़ी गल है। चीनी एक कहावत है कि गुरु नानक ने मनुख दी लाइफ नूं ग्लोरीफाई कीता है। तो जिस नूं मैं पहले कहा कि जिस शरीर नूं यू आर नॉट योर बॉडी कहा जाता सी भारतीय परंपरा, उत्थे ही बाणी ने इहनूं कहा हरमंदर ये शरीर है, कि शरीर दे विच जात में जोत, जोत में जाता। तो चीन दी कहावत है कि अज साडी जिंदगी बड़ी तेज हो गई है, बड़ी फास्ट हो गई है, फास्ट लाइफ हो गई है। तो चीन दी कहावत है कि उन्ने तेज ना चलो कि अपने आस पास खिड़े फुल्लां दी महक तो भी वांझे रह जाओ। हर पल जिंदगी दी खूबसूरती नूं मानना है। बंदे दा मकसद यही होना चाहिए कि मैं एक एक क्षण सैलीब्रेट करना है। जिंदगी प्रति सहृद सोच जिंदगी नूं सोहना बना दिंदी है, और जिंदगी प्रति माड़ी सोच जिंदगी नूं तबाह कर दिंदी है। इसलिए जिहड़ा प्रेम दा प्यार दा जिहदा कि असी अज पूरा ये विशा लिया है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब की अखीर दे विच मैं जिथे अपनी बाणी नूं विश्राम देंगा वो है कि प्रेम विछोआ धनी सो अठे पहर लवन। जो अपने मालक की प्रीत नालों विछड़दा है वो दिन दे अठे पहर ही दिन रात डिप्रैस्ड रहता है। प्रेम विछोआ धनी सो अठे पहर लवन। हर समय वो डिप्रैस्ड रहेगा जिहड़ा नाम तो दूर होएगा, जिहड़ा प्रेम प्रीत परमात्मा दी प्रेम तो प्रीत तो दूर होएगा। अपनी इस जिहड़ी दुनियावी है, जिहड़ा शरीरक प्रेम है, जिहड़े रिश्तियां दे प्रेम ने, इन्हां प्रेमां च प्रेम भी बहुत जरूरी ने, पर आत्मक प्रेम जिहदे विच नहीं है उहदे उन्हां घरां विच अनरेस्ट भी नहीं, अनरेस्ट ही रहेगा, उन्हां विच सुख शांति भी नहीं आएगी। तो मेरी अखीर विच बस इन्नी बेनती कि ये सबजैक्ट ये विशा गुरु ग्रंथ साहब तां प्रेम दा सागर है, प्रेम दा समुंदर है, डुब्बी मारो ते जिन्ना मर्जी कुछ ले लो। तो मैं समझदा कि बाणी नाल जुड़िए, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िए, धर्म नाल जुड़िए, और गुरु ग्रंथ साहब दे धर्म नाल जुड़िए जिस धर्म दे वैल्यू सिस्टम संस्कार मोरैलिटी वे ऑफ लाइफ दिता है। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।